म्यूचुअल और अनुकथनम, कथनम मीन्स डिस्कशन, ठीक है, जो म्यूचुअल डिस्कशन होता है। पावनम मतलब प्यूरिफाइंग, एंड भगवद यसा मीन्स ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम पर्सन। मीन्स ऐसी डिस्कशन जो प्यूरिफाइंग हो, मतलब ऐसी डिस्कशन जो भगवान के गुणगान करती है, वो प्यूरिफाइंग होती है। और उसके क्या फायदे होते हैं? मिथोरतिर, मिथोरतिर मतलब म्यूचुअल अफेक्शन आपस में बढ़ता है। तीसरा क्या, दूसरा क्या है? मिथास तुष्टिर, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन होता है। एंड द थर्ड वन इज निवृत्तिर मिथा आत्मनहा, मतलब इट इज अ cessation of all the miseries, means it helps us to overcome our vices. So it's very important that the devotees come together and discuss about the supreme personality of Godhead. It is purifying, it brings the mutual affection between the two people, it mutually satisfaction, and another is cessation of all material miseries. हाँ, देखो कितना फायदा है इसका। So this shloka is very important. Let me read out the translation to all of you. मैं ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। सारी भागवतम क्लास तो नहीं है, but I was reading this shloka, so I thought I'll just tell about it. One should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of Lord. This process is most purifying, is सबसे ज़्यादा purifying process. As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness. क्या होता है? इस तरीके से भक्तों में आपस में loving friendship बनती है, and mutual happiness and satisfaction is there. And by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification, which is the cause of all suffering. See, कितना important verse है ये? This is very important verse. आया समझ में आपको क्या है ये? Did you all got the point? How important it is? हाँ? हरे कृष्ण, गीता माता जी अभी ज्वाइन नहीं की है। This shloka is very important. चलिए हम लोग अपनी भगवद गीता रीडिंग पे जाते हैं. So I recommend please do read this shloka one more time, because with the devotees when gather, when they chant the glories of Lord, this is the most purifying process, pavanam, and in this there is a mutual loving friendship among the devotee increases, mutual happiness and satisfaction is there, and by thus encouraging one another, they are able to give up material sense gratification. So इस तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति वो छोड़ पाते हैं, which is the cause of all suffering. So this shloka is very important. This is from Bhagavatam, 11th canto, 3rd chapter, 30th shloka. So do read this one or try to memorize. It's very easy. ठीक है, चलिए हम लोग अपनी रीडिंग करते हैं. आज का श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हरे कृष्ण गीता माता जी, बहुत बढ़िया, आज तुसी आए हो. हाँ चलो, फोन मिल गया था ना. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 18, text number 48. सहजं कर्म कौन्तेया सादोषम् अपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. सहजं कर्म कौन्तेया सादोषम् अपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. सहजं कर्म कौन्तेया सादोषम् अपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. पूजा माता जी श्लोका पढ़ो. सहजं कर्म कौन्तेय सादोषम् अपि न त्याजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता. नेक्स्ट मीनल पढ़ो. सहजं कर्म कौन्तेय सादोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. मीनल पढ़ो.
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भस्य दोषेण धूमेनाग्निरिव आवृता. Okay. Translation and purport by Shri Prabhupada. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. O son of Kunti, even if such work is full of fault. क्या बोला है कि कोई भी जो प्रयास है कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है. जिस प्रकार से हम जब आग लगाते हैं तो अग्नि में भी धुआं होता ही है. Therefore, one should not give up the work born of his nature. इसीलिए हमारा जो born nature है, जैसे हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमारा कर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए. कह रहे ओ सन ऑफ कुंती अर्जुन, इवन इफ सच वर्क इज फुल ऑफ फॉल्ट, बेशक वो कार्य चाहे कितने ही दोषों से भरा हुआ क्यों ना हो. जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है. अब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है, एनिमल सेक्रीफाइस कर सकता है, मतलब जानवरों का सेक्रीफाइस कर सकता है. अब ये कार्य तो सही नहीं है, फॉल्ट है इसमें भी, मगर अगर ब्राह्मण उसको करता है तो उसके लिए वो पाप नहीं है. अब क्षत्रिय है, उसको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, राजनीति करनी पड़ती है. अब बोले कि मैं नहीं करूंगा, चलेगा, उसको चलेगा, फॉल्ट तो उसमें भी नहीं होगा, चलेगा वो, ठीक है. अब वही बिजनेसमैन आ गया, जो दुकानदार बनिया होगा, उसको झूठ बोलना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको भी चलेगा, वो भी दोष है उसके कार्य में ना, मगर चलेगा क्योंकि उसका बॉर्न नेचर है, उसका कार्य ऐसा है तो चलेगा, ठीक है. तो ये इसका कहने का अर्थ है यहाँ पे. मगर किसी भी प्रकार से हमारा जो कर्तव्य कार्य होते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारे स्वभाव के अनुसार हमने लिए होते हैं, ठीक है. In conditioned life, all work is contaminated by material modes of nature. Even if one is Brahmana, he has to perform sacrifices in which animal killing is necessary. Similarly, a Kshatriya, however pious he may be, has to fight enemies. He cannot avoid it. Similarly, a merchant, however pious he may be, must sometimes hide his profit to stay in business, or he may sometimes have to do business on the black market. These things are necessary, one cannot avoid them. Similarly, even though a man is a Shudra, serving a bad master, he has to carry out the order of the master, even though it should not be done. Despite these flaws, one should continue to carry out his prescribed duty, for they are born out of his own nature. तो जैसे बोला कि हम जैसे बद्ध जीव है ना, हम लोग बद्ध कंडीशन है, ठीक है. जो भी कार्य जो गुणों के अधीन है वो कंटेमिनेटेड होंगे ही होंगे, ठीक है. कोई भी कार्य जो भौतिक जगत में है, क्योंकि हम बद्ध हैं तो गुणों के अधीन है, तो वो क्या है, कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, ठीक है, कंडीशन लाइफ में. तो इसीलिए चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने कार्य नहीं छोड़ने चाहिए. अगर ब्राह्मण है तो कई बार जिसमें बोला जानवरों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चले. क्षत्रिय है, कितने ही पुण्यवान क्यों ना हो, मगर दुश्मनों से तो लड़ना पड़ेगा. बनिया है, कितने ही पुण्यवान क्यों ना हो, झूठ फिर भी बोलना पड़ता है. हाँ, और इसी प्रकार से शूद्र है, कितना ही बुरा मास्टर क्यों ना हो, उसका बुरा मालिक क्यों ना हो, फिर भी उसकी सेवा उसको करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे दोष हैं, मगर ये उनके बॉर्न नेचर से ये कार्य हैं, तो उनको ये कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है. A very nice example is given herein. Although fire is pure, still there is smoke. अब आग जो है वो तो शुद्ध होती है, मगर जब आग लगाते हैं हम लोग तो धुआं निकलता है कि नहीं निकलता. सर्दियों में कितने लोग आग लगाते हैं, मुझे पता है कितना धुआं निकलता है, वो धुआं निकलता है. Yet smoke does not make the fire impure. मगर फिर भी क्या वो धुआं अग्नि को इम्प्योर करता है. जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आग जलाते हैं, आग क्योंकि शुद्ध होती है, ठीक है, मगर उसमें धुआं निकलता है तो क्या उस धुएं से वो आग अपवित्र हो जाती है? नहीं. Even though there is smoke in the fire, fire is still considered to be purest of all elements. फिर भी उसको शुद्ध माना जाता है. If one prefers to give up the work of a Kshatriya and take up the occupation of a Brahmana, he is not assured that in the occupation of Brahmana there are no unpleasant duties. कोई बोल दे क्षत्रिय में तो मुझे भाई दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, ब्राह्मण का कार्य कर लेते हैं, कोई पाप नहीं है, मगर ये नहीं पता ब्राह्मण भी तो जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं. हाँ. So one may then conclude that in material world, no one can be completely free from the contamination of material nature.
तो इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जब तक आप भौतिक जगत में हो तो ये जो कंटेमिनेशन है, दोष है, इससे आप मुक्त हो ही नहीं सकते जब तक प्रकृति के अधीन हो। ठीक है, दिस एग्जाम्पल ऑफ फायर एंड स्मोक इज very appropriate in this connection. When in winter time one takes a stone from the fire, sometimes smoke disturbs the eyes and other part of the body, but still one must make use of the fire despite disturbing condition. अब जैसे सर्दियों में हम आग तो लगाते ही लगाते, अब चाहे चाहे धुआं निकले, चाहे जो मर्जी हो, भाई अपने आप को गर्म रखना तो आग तो जलाएंगे, है कि नहीं? कई बार डिस्टर्ब करती है, आंखों में जलन हो तो फिर भी जलाते हैं। उसी प्रकार से one should not give up his natural occupation because there are some disturbing element. तो इसी प्रकार से जो हमारा स्वाभाविक जो ऑक्यूपेशन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक उसमें कुछ डिस्टर्बेंस ही क्यों ना हो। तो rather one should be determined to serve the Supreme Lord by his occupational duty in Krishna consciousness. That is the perfectional point. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of Supreme Lord, all the defects in that particular occupation are purified. When the result of work, one second, I want to take the picture of this. So that is the, क्या बोला है कि similarly one should not give up his अपना जो स्वाभाविक कार्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए. One should be determined, rather one should be determined to serve the Supreme Lord by his occupational duty in Krishna consciousness. So देखिए आपके स्वभाव के अनुसार चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उस ऑक्यूपेशन में रह के मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ. ठीक है, तो वो उन 3 गुणों में जो अगर दोष भी होंगे उनमें तो वो भी ठीक हो जाए. So that is the perfectional point. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord, all the defects in that particular occupation are purified. क्या बोला है? When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord, all the defects in that particular occupation are purified. When the result of work are purified, when connected with devotional service, one becomes perfect in seeing the self within, and that is self-realization. क्या बोला है कि when the result of work are purified, when connected with devotional service, one become perfect in seeing the self within, and that is self-realization. तो इस प्रकार से जब कोई भी कार्य है भगवान की भक्ति के साथ में जोड़ते हैं तो वो क्या है, वो अपने आप ही परफेक्ट हो जाती है. ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, देखिए हम लोग क्या है, सॉरी, जैसे हमारे एक महाराज रहे हैं इस्कॉन में, गौर गोविंद महाराज, वो प्रोफेशन से टीचर थे, ऑक्यूपेशन से क्या थे, वो टीचर थे, स्कूल में अध्यापक थे, पढ़ाया करते थे. हमारे निमाई पंडित भी टीचर ही थे, चैतन्य महाप्रभु से, ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर. ये जो हमारे गौर गोविंद महाराज थे, हमारे इस्कॉन में थे महाराज, हमने शरीर छोड़ दिया अपना, तो प्रोफेशन से वो टीचर हुआ करते थे. अगर वो एक वैष्णव थे तो मगर वो इस तरीके से पढ़ाई करवाते थे बच्चों को कि भक्ति के बारे में भी बता दिया करते थे. सो दिस इज द परफेक्शन, बेस्ट यूज ऑफ वंस ऑक्यूपेशन. उन्होंने क्या अपना ऑक्यूपेशन छोड़ा कि ये क्या भौतिक चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं इनको, नहीं, इस तरीके से पढ़ाया कि लोगों को आध्यात्मिक जागृति भी हो सके. तो उसी प्रकार से हमारा कोई भी प्रोफेशन है हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. देखिए यहाँ तो हम उसके, जैसे अभी किसी को डिजाइनिंग आती है तो वो डिजाइनिंग वर्क भक्तों के लिए भी कुछ डिजाइन कर सकता है, अच्छे से अपना ऑक्यूपेशन इस्तेमाल हो सकता है. अगर डायरेक्टली नहीं हो सकता तो जो मॉनिटरी मीन्स है, मतलब जो उसका रिजल्ट आ रहा है, वो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. तो इस प्रकार से कोई भी कार्य है जब भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारे ऑक्यूपेशन को, तो वो उसका परफेक्शन है. ठीक है, अब जैसे ब्राह्मण है, उसका कार्य क्या है, जैसे यज्ञ हवन करना या मंत्र उच्चारण करके कोई यज्ञ करवा देता है या ज्ञान दे देता है. अगर वो ज्ञान सिर्फ कर्म कांड का नहीं, भक्ति के बारे में बताए तो उसके वो ऑक्यूपेशन की परफेक्शन है. अब जैसे क्षत्रिय अगर अपने बल का उपयोग भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए करे तो वो उसके ऑक्यूपेशन का बेनिफिट. अब कोई वैश्य है, बिजनेसमैन है, अगर वो अपने मुनाफा भगवान की सेवा में लगाए वो भी परफेक्शन है. शूद्र है,
अगर उसका मास्टर है, अगर वो कृष्ण भावना में तो उसकी सेवा कर रहा है, उसकी भी परफेक्शन है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य आप करिए, जब भगवान जुड़ जाते हैं तो वो उसका परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको गाना पसंद है, भगवान के लिए गाओगे, परफेक्शन है। आपको खाना बनाना पसंद है, भगवान के लिए बनाओगे, उसका परफेक्शन है। आपको गाने सुनना पसंद है, भगवान के कीर्तन सुनोगे, वो परफेक्शन है। आपको बोलना पसंद है, भगवान का गुणगान करोगे अपनी जीभा से, वो उस जीभा की परफेक्शन है। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी कार्य है, उसकी परफेक्शन जब उसको भगवान के साथ जोड़ा जाता है तो वो उसका वो परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इस वर्स में किसी को कोई डाउट है आगे बढ़ने से पहले? हरे कृष्णा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस वर्स में? कोई कुछ ना समझ में आया हो या कोई डाउट रहा हो? हरे कृष्णा, प्लीज से यस और नो। नो माता जी। नहीं है ना, आया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा निष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यसेनाधिगच्छति। One who is self-controlled and unattached, who disregards all material enjoyments, can obtain, by practice of renunciation, the highest perfect stage of freedom from क्या बोला? जो आत्म संयमी है, आसक्त नहीं है, जो भौतिक इंजॉयमेंट को डिसरिगार्ड मतलब कोई भाव नहीं देता, हाँ, बाय द प्रैक्टिस ऑफ रिनंसिएशन, त्याग से, the highest perfect stage of freedom from reaction can obtain। देखिए, जो आत्म संयमी है, आसक्त नहीं है, और जो भौतिक सुखों के प्रभाव में ज्यादा आसक्त, उनकी प्रति ज्यादा नहीं ध्यान देता, वो व्यक्ति त्याग जैसे रिनंसिएशन की प्रैक्टिस करके हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन कैन ऑब्टेन। मतलब देखिए, हमारे हर कर्म का एक एक्शन रिएक्शन है। तो जो व्यक्ति आत्म संयमी है, इतना आसक्त नहीं है, वो इसके बंधनों से परे हट सकता है। कैसे? हम पढ़ते हैं इसको परे में। Real renunciation means that one should always think himself part and parcel of Supreme Lord, and therefore think that he has no right to enjoy the result of his work. तो असल में जो त्याग है, renunciation है, वो क्या है? वो चीज है कि ये नहीं कह रहे सब माया 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 छोड़ दो माया, नहीं। तो व्यक्ति जो ये समझे कि मैं भगवान का अंश हूँ, हाँ, और ये समझे कि कोई भी जो रिजल्ट है मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ। भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं है। तो कोई भी जो चीज है, कार्य है, वस्तु कुछ भी है, जब आप उसको भगवान के संदर्भ में देख पाओ, उनके सेवा के लिए इस्तेमाल कर सको, तो वो असल में क्या है। ठीक है, since he is part and parcel of Supreme Lord, the result of his work must be enjoyed by Supreme Lord। तो हम तो भगवान के अंश ही हैं, अंश मात्र हैं। अब देखो, आप जैसे किसी गवर्नमेंट में, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, उसमें आप छोटे से एक ऑफिसर हैं, ठीक है, तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है राज्य से, उसका बेनिफिशियरी कौन है? गवर्नमेंट की आप। हाँ, आप तो टैक्स कलेक्टर हो, ठीक है, मगर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो पूरी जो राज्य है या देश है, वो किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है। आप छोटे से ऑफिसर हो उस गवर्नमेंट के, ठीक है, तो वो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उसके भोक्ता आप हो या आपकी सरकार है? हाँ, कौन है भोक्ता? ड्यूटी तो आप ही करोगे टैक्स कलेक्ट करने का, कार्य तो आप ही नहीं करना है, मगर क्या आप उस टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है उसको एंजॉय करने के भाग वो हो, डिजर्विंग कैंडिडेट हो? हाँ, आर यू एलिजिबल टू एंजॉय दैट टैक्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल? जो आप कर वसूल कर रहे हो जनता से, क्या आप उसका भोग करने के डिजर्विंग कैंडिडेट हो? हाँ या ना? हाँ, क्या आप उसका भोग कर सकते हो? नो माता जी। नहीं कर सकते। उसका भोक्ता कौन है? सरकार। अब सरकार चाहे जैसे भी इस्तेमाल करे। उसी प्रकार से हमारी सरकार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम क्या है?
उनके छोटे से अंश मात्र, छोटे से कुछ जीवा है। तो इस भौतिक जगत हम तो अपना कार्य करेंगे, तो मगर क्या उसका जो फल होगा, क्या हम उसको भोग करने के लायक हैं? बोलिए हाँ, हाँ या ना? ना। नहीं। कौन एंजॉय करेगा उसको? भगवान। भगवान करेंगे। हम तो अंश मात्र हैं, हम तो कार्य करना है, मगर जो भी मिलेगा उसके भोगता तो भगवान ही, वही एंजॉय करेंगे। हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते। तो जो इतना समझ जाए तो वो एक्चुअल में कृष्ण भावनामृत है, कि कोई भी कार्य उसका जो फल है वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगाते हैं फिर हम कृष्ण भावनामृत नहीं है। ठीक है। द पर्सन एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियस इज रियल सन्यासी। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो एक्चुअल में सन्यासी है, जो रिनाउंस्ड ऑर्डर में होता है। By such a mentality, one is satisfied because he is actually acting for the supreme. तो इस चेतना से जो कार्य करता है वो एक्चुअली भगवान के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से वो भौतिक जगत से आसक्त नहीं होता, और he is not accustomed to not taking pleasure in anything beyond the transcendental happiness derived from the service of the Lord. तो इसलिए वो कोई भी कार्य में सुख अनुभव नहीं करता जो भगवान के लिए ना हो। ठीक है, ऐसा होता है भक्त। A sannyasi is supposed to be free from the reaction of his past activity, but a person in Krishna can automatically attain this perfection without even accepting the so-called order of renunciation. जो सन्यासी है माना जाता है कि अपने पिछले कर्मों से मुक्त है, मगर जो व्यक्ति सन्यास अगर नहीं भी लिया मगर कृष्ण भावनामृत में है तो उसके सारे कर्म वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दिस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा रुद्धा, और परफेक्शनल स्टेज ऑफ योगा, as confirmed in the third chapter, Yastav Atmaratir Evasyat. One who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction from his activity. क्या बोला है? कि one who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction from his activity. मतलब जो आप अपने में संतुष्ट है, अपने में संतुष्ट मतलब जो भगवान की संतुष्टि कर रहा है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता कि मेरे को एक्शन रिएक्शन क्या मिलने वाला है। नो, कभी भी नहीं। ठीक है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में संशयैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। O son of Kunti, learn from me how one has achieved this perfection, can attain to the supreme perfectional stage. Brahman, the stage of highest knowledge by acting in the way I shall now summarize. क्या बोले कि सुनो हे अर्जुन, मुझसे सीखो किस प्रकार से ये जो परफेक्शन अटेन की जा सकती है, द स्टेज ऑफ हाईएस्ट नॉलेज, किस प्रकार से मेरे लिए कार्य करते आप ये स्टेज अटेन कर सकते हो। Lord described for Arjuna how one can achieve the highest perfectional stage simply by being engaged in occupational duty, performing that duty for the supreme personality of Godhead. भगवान बता रहे कि किस प्रकार से मेरे लिए कार्य करके तुम उच्च कोटि की परफेक्शन अटेन कर सकते हो। One attain the supreme stage of Brahman simply by renouncing the result of his work for satisfaction of supreme Lord. That is the process of self-realization. The action performed of knowledge is in attaining pure Krishna consciousness, that is described in the following verses. तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान बता रहे कि किस प्रकार से मेरे लिए कार्य करके तुम सही में आत्म साक्षात्कार में वृद्धि कर सकते हो। तो क्या करें वो भी भगवान बताएंगे हमको। बुद्धि विशुद्धाय युक्तो धृत आत्मनं नियमा च शब्ददीन विषयं त्यक्त्वा राग द्वेषो वियुद्धस्य च विविक्त सेवी लगौ अशि यतावक्काय मानसा ध्यान योगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयः कल्पते। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the object of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, who is always in trance and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger and acceptance of material things, free from false proprietorship and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self-realization. कौन स्मार्ट टीवी के बगल से है?
किस प्रकार से कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में प्रगति कर सकता है? जो अपनी बुद्धि, अपने मन के नियंत्रण, दृढ़ता से अपने मन को नियंत्रण कर सके, इंद्रिय तृप्ति के भोग विलास को छोड़ दे, अपने आसक्तियों से और हेट्रेड, हेट्रेड का क्या मतलब होता है हिंदी में? नफरत से परे हो। जो व्यक्ति सिक्योरिटीड प्लेस में रहे, सिक्योरिटीड प्लेस यहाँ पे कहने का मतलब है भक्ति की संगी में, भौतिक लोगों के संग में नहीं। जो बहुत कम खाए, कम खाने का मतलब जितना आपके शरीर के लिए जरूरत है, उसका शरीर पूरा संयम में हो। माइंड एंड पावर ऑफ स्पीच, जिसमें अपनी स्पीच की पावर को कंट्रोल कर सके, जो हमेशा ट्रांस में हो, डिटैच्ड हो, आसक्त ना हो, फॉल्स ईगो से परे हो, फॉल्स स्ट्रेंथ, फॉल्स प्राइड, ये जो हमारा काम क्रोध मोह है इससे परे हो। वो व्यक्ति, ये जो अपने आप को हम लोग मालिक समझते हैं, इससे परे हो, वो व्यक्ति एक्चुअल में ये जो सेल्फ रियलाइजेशन इसको अटेन कर सकता है। ठीक है। When one is purified by intelligence, he keep himself in the mode of goodness. तो जब जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है तो व्यक्ति हमेशा सतोगुण में होता है। एंड इस प्रकार से वो क्या होता है, अपने मन को कंट्रोल कर पाता है और हमेशा समाधि में रहता है, और वो कभी भी विषय वस्तुओं से आसक्त नहीं रहता, दुश्मनी से जैसे नफरत नहीं करता लोगों से। मतलब नेचुरली क्या है, सिक्योरिटी प्लेस मतलब भक्तों के संग में रहना पसंद करता है, उतना ही खाता है जितने शरीर के लिए जरूरी है, अहंकार नहीं होता उसमें। ठीक है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपने ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट में नहीं है, मतलब शारीरिक स्तर पर नहीं है, और हमेशा मिथ्या अहंकार से परे है। हाँ, उसमें इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत स्टेज मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वां श्लोक है, उसमें लिखा है अपरिमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम अपप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् भविष्यति सर्वे शांतिम आपनोति न कामकामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires, वो व्यक्ति जो हमारे, देखो हमारे मन में भी कई इच्छाएं घूमती रहती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मगर जो व्यक्ति इन चीजों से डिस्टर्ब ना हो, जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जिस प्रकार से नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो क्या समुद्र कभी डिस्टर्ब होता है? नहीं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कई इच्छाएं घूमती हैं, मगर वो व्यक्ति उनसे डिस्टर्ब नहीं होता, हमेशा शांत रहता है। इस तरह का रहा है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं होता उसका। He remains satisfied within. So we need to practice this thing कि हमारे में इच्छाएं तो बहुत है भौतिक वाली, मगर किस तरह से संयम ही रहना है। तो व्यक्ति रहता है अपनी तीव्र बुद्धि से, जो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं शास्त्रों का अध्ययन श्रवण कीर्तन से, तो उससे हम अपनी बुद्धि से अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन ये जो इंसिडेंट फ्लो है डिजायर्स का, इसको भी नियंत्रण में रख सकते हैं और भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विराम लेते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आप कुछ बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो यहीं पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है बोलिए। यस, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ना समझ आया हो? से यस और नो कहिए, हाँ या ना। आस्था का कोई प्रश्न नहीं है, और किसी का? एनीवन एल्स? मिनल कुछ कह रहे हो आप? कोई प्रश्न नहीं समझ में आया सभी को? क्या पढ़ा हम लोगों ने? कुछ कह रहे हो मिनल? नहीं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। तो मॉर्निंग जपा सेशन में जरूर आइए प्लीज। सी यू ऑल टुमारो फॉर जपा सेशन। और जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इस पे थोड़ा सा कंटेम्पलेट जरूर करिएगा कि क्या पढ़ा हम लोग, दोबारा उसको पढ़िए ताकि कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सके। ठीक है, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्ण संवाद की जय। नरेंद्र जय शिव की जय। ऑल सिंबल डिवोटीज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। कृष्ण।